first drug is Drotin. It is antispasmodic. It relieves smooth muscle spasm. It is uses are in gynecological cases also and obstetric cases also. In gynecology, most common is dysmenorrhea. In dysmenorrhea patient, we give this around 40 milligram TDS or 80 milligram TDS depending on the severity of the pain or dysmenorrhea. And in general renal or abdominal colic also, if any patient comes to an emergency with a pain abdomen, so first foremost thing you give, if you are an intern or a medical officer, you give pantoprazole and Drotin. And if severe pain is there, you can give PCM. Or in OPS cases, it is given in first stage of labor, active stage of labor. First drug is Drotaverine. It is an antispasmodic. It relieves smooth muscle spasm. Uses क्या बोला अभी मैंने? Gynecological uses क्या बोला? Dysmenorrhea and renal general abdominal colic. And in obstetrics, it is used in active stage or first stage of labor. How it helps in active stage of labor? When patient comes with labor pains and patient is dilating, but not cervical dilatation is not up to the according to the pain. Cervical dilatation is less, pain are severe. In that case, we can give Drotaverine. What it does, it helps in or hastens the cervical dilatation, cervical ripening, cervical dilatation. So in that cases also we give Drotaverine, not for just pain relief, to hasten the cervical dilatation. So many times we put in a patient is already receiving oxytocin, like in 500 ml, you have given 5 unit oxytocin. Then in that case, we push 2 ampules or 3 ampules of Drotaverine to hasten the cervical dilatation. So what is the mechanism of action? It is phosphodiesterase 2 inhibitor, 4 inhibitor. और what it does, phosphodiesterase 4 inhibitor में क्या होता है? Inhibit करने से क्या होगा? सेल के अंदर CMP and CGMP इंक्रीज हो जाएगा. उससे क्या होगा? स्मूथ मसल स्पैज्म रिलीफ होगा. ठीक, ये हो गया तुम्हारा Drotin. ये लीस्ट बहुत ज़्यादा सीवियर इम्पोर्टेंट नहीं है. अब सबसे तुम्हारा सब लोग आ गए ना. अब सबसे तुम्हारा इम्पोर्टेंट ड्रग Mexelf. Mexelf is used, main uses anticonvulsant. Okay, if patient comes with eclampsia or convulsion, a patient is 34 weeks pregnant, patient entered the emergency and she is having convulsions. So first you will not give any other anti-convulsant drugs or anticonvulsants. You will give Mexelf. In pregnancy, you will give Mexelf, not phenytoin and or diazepam or lorazepam. You will give Mexelf in pregnancy patient. ये हमेशा याद रखो, क्योंकि इसके बाद हो सकता है कि तुम लोग, कई लोग गायनी नहीं लोगे, कई लोग कुछ ही लोग लोगे और बाकी लोग नहीं लोगे. तो इमरजेंसी में सबसे मेजर मिस्टेक होता है कि पेशेंट, व्हेन यू आर अटेंडिंग द पेशेंट, a patient is pregnant and she is having convulsion. For first foremost thing, many doctors give phenytoin, lorazepam, diazepam. But first you have to give Mexelf. If it is not controlled Mexelf, then you will move on to other drugs. Mexelf has multiple uses. In OPS, multiple uses. Multiple means 3-4 major uses. First is anticonvulsant if patient is having eclampsia. Convulsion means eclampsia. Patient is having active convulsion. Second thing is prophylaxis for pre-eclampsia patient to decrease the chances of having convulsion. So in that cases of patient is having BP more than 160/110, patient is complaining of headache, patient complaining of epigastric pain, there is swelling of both the feet, fetal edema is there. In that case, obviously you know patient may have convulsion in 1 or 2 hours, so you will give this as prophylaxis, Mexelf. Okay, and the third use is, what is other use? Do you know any other use? Mexelf, tocolytic. If patient is having preterm labor, in that case also we give Mexelf. Okay, tocolytic, very important. Like patient is 28 weeks pregnant or 30 weeks pregnant,
तो obviously you don't want to patient to go in labor, so you will give tocolytic drugs. There are many other tocolytic drugs. This is one of them, very effective. And one fourth most important uses why it is preferred over other drugs is it is neuroprotective for the fetus. Like in 30 weeks pregnancy, obviously baby is going to be premature, so it is helps for neuroprotection. But neuroprotection mechanism not known yet properly ki how it protects the brain of the fetus, but it protects, or proper mechanism not known yet, not studied so far. The other mechanisms are first is acetylcholine. Acetylcholine, it decreases the release of acetylcholine from the nerve ending. Nerve ending से release होता है acetylcholine, motor end plate पे act करता है, तो क्या करता है, it suppresses the sensitivity of the motor end plate to acetylcholine. तो overall acetylcholine का action ही कम हो गया. सेकेंड होता है NMD, जो रिसेप्टर्स होते हैं ब्रेन में, तो उसको ब्लॉक करता है. थर्ड होता है कैल्शियम आयन का एंट्री ब्लॉक करता है या कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करता है, तो उससे भी तुम्हारा कॉन्ट्रैक्शन कम होगा. इसलिए टोकोलिटिक एक्शन में ये मेन काम है. लेकिन न्यूरो प्रोटेक्शन का प्रॉपर मैकेनिज्म नॉट येट नोन. इसका डोज, अच्छा इस वाइल में यू कैन रीड, थोड़ा पास आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, तुम लोग नहीं देख पाओगे. इसमें है, ये है 2 ml वाइल होता है नॉर्मली, ठीक है. तो इसमें 50% सॉल्यूशन लिखा हुआ है, देखिएगा जैसे ये रहा 50% सॉल्यूशन लिखा है, ठीक है. और इट इज अ 2 ml vial. Okay, 50% solution of 2 ml vial means 1 gram of Nexelf is present in 2 ml. ठीक है, सब देख लो, बारी बारी करके सब देख लो. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई कॉपी या पेज देना. ये नॉर्मल ड्रग्स, बाकी एक तुम्हारे पीपीएच के ड्रग्स हो गए, ये हो रहे हैं मेनली. इसमें से है तुम्हारा हाँ एंटी हाइपरटेंसिव, मतलब एंटी हाइपरटेंसिव क्लास का है, लेकिन उसमें से और भी कुछ हैं. बाकी जो तुम्हारे नॉर्मली यूज होते हैं और भी आ रहे हैं अभी. और एक और ड्रग है, वो अभी यहाँ अवेलेबल नहीं है, वो भी पढ़ाना है अभी, और पढ़ाऊंगी इसके बाद. ये सबसे इम्पोर्टेंट मैक्सेल्फ है. मैक्सेल्फ, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट. ओके, तो इसमें 2 ml वाइल में तुम्हारा 1 ग्राम है, ठीक है. अब इसके डिफरेंट रेजिमेंट्स होते हैं. एक तो तुम्हारा क्या रूट है देने का, IM और IV है, ठीक है. तो इसमें नॉर्मली हम लोग यहाँ पे वेस्ट बंगाल में फॉलो होता है प्रिटचार्ड रेजिमेंट, ठीक. प्रिटचार्ड रेजिमेंट, इसमें क्या करते हैं कि फर्स्ट यू गिव 4 ग्राम ऑफ 20% सॉल्यूशन, 4 ग्राम ऑफ 20% सॉल्यूशन इन NS. कैसे देंगे 4 ग्राम, कैसे होगा, इसमें हम लोग को अप्रॉक्स 20 ml लेना होता है टोटल सॉल्यूशन. अब टोटल सॉल्यूशन में से 4 ग्राम मैक्सेल्फ होना चाहिए, ठीक है. 20% तक वो कैसे होगा, उसमें हम लोग 4 ग्राम के लिए हम लोग कितना ml चाहिए होगा, ये नहीं, ये एम्प्यूल कितना चाहिए होगा, 8 ml, ठीक है. तो 20 ml में से 8 माइनस करो, कितना हुआ, 12 ml. तो 12 ml NS, ठीक है, और तुम्हारा 8 ml मैक्सेल्फ का एम्प्यूल हो गया, ठीक है. तो अगर हम उसको डिवाइड करोगे तो एक 10 ml में तुम्हारा 4 ml हो गया मैक्सेल्फ का एम्प्यूल, और बाकी हो गया 6 ml NS, तो 10 ml हो गया. ऐसे 2 हम लोग सिरिंज ले लेते हैं, और टोटल 20 ml वी पुश IV, स्लो IV ओवर 10 मिनट्स. ये हो गया तुम्हारा लोडिंग डोज. लोडिंग डोज ये फर्स्ट पार्ट हुआ. सेकेंड पार्ट लोडिंग डोज का है 5 ग्राम ऑफ 50% सॉल्यूशन इन ईच बटक, ठीक. ईच बटक देते हैं, ये प्लस है. लोडिंग डोज ये दोनों को बोलते हैं. फर्स्ट पार्ट ये है, सेकेंड पार्ट ये है. ये वाला IM है एंड दिस वाज IV, ठीक. अब जो आता है तुम्हारा मेंटेनेंस डोज. मेंटेनेंस डोज में अच्छा 5 ग्राम में कितना दोगे, 10 ml, तो फुल 10 ml का सिरिंज ही हो गया, है ना. 10 ml फुल. 5 ग्राम मतलब कितना ml हुआ, 10 ml हुआ, 10 ml हुआ, ठीक. तो मतलब फुल 10 ml तुम एक बटक में दोगे और एक बटक में 10, तो थोड़ा स्लोली देना होता है बिकॉज इट इज वेरी पेनफुल. अच्छा, अब मेंटेनेंस डोज में क्या होता है, सेम 5 ग्राम और 50% सॉल्यूशन इन ऑल्टरनेट बटक्स 4 hourly.
4 आवर्ली पुश करते हैं, ठीक है। मतलब जैसे ये तुमने कर लिया, अब इसके 4 आवर्स के बाद फर्स्ट मेंटेनेंस डोज होगी, मान लो तुमने लेफ्ट बटक में दिया, आफ्टर 4 आवर्स यू विल गिव इन राइट बटक। और कब तक देना है? अप टू 24 आवर्स ऑफ डिलीवरी और लास्ट कन्वर्जन, जो भी विच एवर इज लेटर, जो बाद में हुआ है उससे 24 आवर्स तक कंटिन्यू करना है, ओके। But in some cases you have to stop them itself, even if you know it is very good effects are very good for the patient, but in some cases you have to stop it. Why? Because of its major some side effects, okay. मैग्नीशियम का जो तुम्हारा हाँ ना 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 हाँ, हाइपरकैलेमिया एक तरह से होता है, पर इसमें मेनली होता है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ठीक, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और मसल वीकनेस, ठीक। और इट इज सेक्रेटेड थ्रू रीनल पाथवे, इट सेक्रेटेड यूरिन, तो रीनल, ठीक है, रीनल साइड इफेक्ट होता है। तो यू हैव टू मॉनिटर 3 थिंग्स व्हेन यू आर गिविंग MEG-Self. Like you are an intern, you are giving rounds in the ward, patient is giving MEG-Self. So in every round we have to check major 3 things. BB तो चेक कर ही रहे हो, अलग चीज़ है obviously. Respiratory rate, it should be more than 14. Urine output, it should be more than 25 ml per hour. That means 100 ml per 4 hours. It is minimal, इतना होना ही चाहिए, नहीं हुआ तो you have to stop MEG-Self, ठीक है। और patellar और knee jerk, ठीक, deep renal reflexes you have to check in every round. हाँ, ये 3, अगर इसमें से कोई भी कम हो रहा है you need to stop the MEG-Self, ठीक है। होल्ड कर सकते हो, जब प्रॉपर आ गया सब कुछ वापस फिर से स्टार्ट कर सकते हो, अगर पेशेंट का रिस्क ज़्यादा हुआ तो, ठीक है। What is the therapeutic level of magnesium in the blood? 4 to 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। अगर इतना लेवल रीच कर गया है तो दैट मीन्स इट मैग्नीशियम इज एक्टिंग ऑन द टिश्यूज ऑफ द पेशेंट एंड ब्रेन ऑफ द फीटस, ठीक है। तो इतना लेवल है तो ठीक है, अगर इससे बहुत ज़्यादा हो गया तो टॉक्सिसिटी में, मतलब मोर देन 10 बोलते हैं, टॉक्सिसिटी में चला गया। अच्छा, और रेजिमेन हो गया, और तुम्हारा इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होगा? हाँ, मसल वीकनेस हुआ साइड इफेक्ट, अच्छा यूज बोल रहे हो, अच्छा बता रही हूँ, मसल वीकनेस हुआ साइड इफेक्ट, तो इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है माइस्थेनिया ग्रेविस। और तुम्हारा रीनल साइड इफेक्ट, इसका रीनल सेक्रेशन होता है, तो मेटरनल रीनल डिजीज हुआ, हाँ रीनल डिजीज हुआ तो उस केस में विल नॉट गिव, ठीक है। और तुम यूजर्स पूछ रहे थे, यूजर्स आर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज एंटी कन्वर्जन, डायरेक्ट एंटी कन्वर्जन, ठीक है। सेकेंड इज फॉर prophylaxis of pre-eclampsia to inhibit or prevent the convulsion, proper convulsion, the prophylaxis. Third is, क्या बोला था थर्ड? Tocolytic, yes, tocolytic. Fourth क्या बोला था? Neuroprotection for baby, not mother, हाँ, for the fetus, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा MEG-Self। इसका कितने ml में कितना ग्राम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट इज लेबेटलॉल। लेबेटलॉल यहाँ पे नहीं है, मैं तुमको जो 5 ग्राम का जो सेकेंड लोडिंग डोज है, इसमें 5 ग्राम में 25 ml, मतलब 25 से माइनस करके इसमें NS नहीं मिक्स करना है, इसमें ऑलरेडी 50% सॉल्यूशन है, इसमें पढ़ो, इसमें पढ़ा है तुम लोग को, दिया मैंने 50% ऑलरेडी, दिस इज 50% सॉल्यूशन, तो यू हैव टू गिव फॉर द ये IM डोज, यू हैव टू गिव डायरेक्टली, यू डोंट नीड टू मिक्स एनी NS, ठीक है। लास्ट में मैं बता दूंगा, ठीक है।
न्यूरोप्रोटेक्टिव है इसलिए तो नहीं तूने बहुत सारे यूजेस बताया, देखो बता रही हूँ, देखो फर्स्ट 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 सिनेरियो बता रही हूँ। फर्स्ट पेशेंट इज हैविंग कन्वर्जन, पेशेंट आया पूरा कन्वर्जन साथ मतलब एंटर ही करेगा, पूरा कन्वर्जन फिट्स हो रहा है, या पेशेंट विल बी अनकॉन्शियस, पेशेंट पार्टी हिस्ट्री देगा कि शी हैड 1 एपिसोड ऑफ कन्वर्जन और 3 एपिसोड ऑफ कन्वर्जन, ठीक है। तो उस केस में फर्स्ट तुम बीपी चेक करोगे, बीपी बढ़ा हुआ तो अभी बता दूंगी नेक्स्ट क्या ड्रग देना है। उस केस में मैक्सेल स्टार्ट करना है, सबसे पहले लोडिंग डोज दोगे ये वाला आईवी, तब तक नर्सिंग स्टाफ को बोलोगे बाकी प्रिपेयर करने, आईएम डोज प्रिपेयर करने, तब तक तुम लोडिंग डोज डॉक्टर्स को पुश करना होता है, क्योंकि थोड़ा साइड इफेक्ट होता है, देखना पड़ता है तुमको, बीपी सब चेक करना पड़ता है, रेस्पिरेटरी देखना होता है, पल्स चेक करना होता है, और पेशेंट को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है, जब दोगे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगा हैंड में बहुत ज़्यादा, तो वही डॉक्टर ही देते हैं लोडिंग डोज। तब तक तुम सिस्टर को बोलोगे ये आईएम डोज जो है इसका, लोडिंग डोज का सेकेंड जो पार्ट है वो प्रिपेयर करने के लिए। ये हो गया तुम्हारा कन्वर्जन वाला, ठीक है। अब आया पेशेंट इज हैविंग बीपी 170 by 120, ठीक है, 170 by 120 बीपी है, पेशेंट इज हैविंग साइंस ऑफ सिवियर प्री-एक्लैम्सिया, दिस इज नोन एज सिवियर प्री-एक्लैम्सिया। इसमें क्या होता है, पेशेंट को हेडेक है, ठीक है, एपिगेस्ट्रिक पेन है, पीटल एडेमा है, और डिफरेंट पैरामीटर्स डिरेंज है, दैट मीन्स लाइक तुम्हारा लिवर एंजाइम्स में जो तुम्हारा एसजीओटी एसजीपीटी है मोर देन ट्वाइस है, प्लेटलेट्स लेस देन 1 लाख है, ठीक है, और क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, ठीक है, मोर देन 1 है। तो ये सब डिफरेंट पैरामीटर और भी हैं, एल्बुमिन वो सब बढ़ा हुआ है, एल्बुमिन का 30 मिलीग्राम से ज़्यादा है, तो वो सब पूरा चार्ट है उसका सिवियर प्री-एक्लैम्सिया का क्राइटेरिया का। अगर वो है पेशेंट को और बीपी इज मोर देन 160 by 110, दिस इज द लिमिट, मोर देन 160 by 110 देन यू हैव टू गिव मैक्सेल, देना ही देना है आपको, ठीक है, उसमें आप नहीं छोड़ सकते। अगर आपने भूल के देना तो दैट विल बी डेडली फॉर द पेशेंट, ठीक है। तो अगर प्री-एक्लैम्सिया का पेशेंट है दैट मीन्स कि मोर देन 160 by 110 है, प्लस ये सब साइंस है, या यूरिन एल्बुमिन पॉजिटिव है, तुमने डिपस्टिक किया मोर देन +1 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे रिपोर्ट्स ऑब्वियसली कराने का टाइम होता नहीं, पेशेंट आया है, बीपी ज़्यादा है, अगर डिपस्टिक में +1 से ज़्यादा है तो यू गिव पुश मैक्सेल, ओके। सेम यही रेजिमेन है। अगर कुछ भी नहीं है तो फिर अगर वो न्यूरोप्रोटेक्टिव इसलिए देंगे या नहीं देंगे? हम लोग देते हैं 160 by 110 में देते हैं, क्योंकि हमारे पास रिपोर्ट्स बाकी अवेलेबल नहीं रहते हैं नॉर्मली, मतलब मोस्टली 90% केसेस में नहीं रहते हैं अवेलेबल, तो उस केस में हम लोग 160 by 110 से बीपी ज़्यादा है तो बिल्कुल देंगे, क्योंकि गिविंग में कोई साइड इफेक्ट उतना नहीं होता है, एक डोज में, लोडिंग डोज में कुछ इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, अनलेस अंटिल रीनल डिजीज है पेशेंट को, नॉर्मली नहीं होता है, तो 99.9% आई विल से हम लोग पुश करते हैं, हाँ, अनलेस अंटिल हमको प्रूवन है कि रीनल डिजीज है या माइस्थीनिया ग्रेविस, उन केस में बस हम लोग नहीं देंगे, नहीं तो बिल्कुल देंगे ही देंगे, क्योंकि नहीं देने से जो कन्वर्जन में क्या होता है, मेन क्या प्रॉब्लम होता है, व्हाट हैपेंस इन कन्वर्जन, व्हाई वी आर सो अफ्रेड ऑफ कन्वर्जन of the patient, why, what happens, because if patient is having convulsion, there will be obviously there are secretions of the mouth, aspiration of the secretion, सबसे deadly यही चीज है। एस्पिरेशन क्या होता है, कई बार पेशेंट आएगा, पेशेंट विल पार्टी विल गिव हिस्ट्री कि इसको 4-5 टाइम्स कन्वर्जन हो चुके हैं, और यू विल ऑस्कल्टेट द चेस्ट, फुल पल्मोनरी एडेमा, क्रेप्स आर फुल ऑल ओवर द चेस्ट, तो दैट मीन्स शी हैज़ ऑलरेडी एस्पिरेटेड, तो उस केस में मोस्टली वी हैव टू शिफ्ट द पेशेंट टू आईसीयू डायरेक्टली, मैक्सेल तो देना ही है, लेकिन जो होना था हाफ चीज़ ऑलरेडी डन हो गया, उसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए वी गिव, इसलिए ये जो मैं बताया इसमें देते ही देते हैं, क्यों देते हैं, इसलिए कन्वर्जन होने से और बुरा, और कई बार एस्पिरेशन नहीं भी होता है, पेशेंट डायरेक्टली गो इनटू कोमा, ठीक है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, डायरेक्टली गो इनटू कोमा, तो उसमें कोई रीज़न भी नहीं मिलता है उस टाइम में, रीज़न बस यही मिलता है, इसलिए देना ही देना होता है। तो ये दोनों चीज़ हो गया। टोकोलिटिक में भी सेम इस टाइप का देते हैं, बस उसमें डिफरेंस होता है कि इसमें 4 ग्राम ऑफ 20% आईवी दिया, मतलब कि तुम्हारा वही 8 ml का एम्प्यूल दिया मैक्सेल्फ का, और तुम्हारा 12 ml NS ये आईवी पुश किया, ओवर थोड़ा टाइम ज़्यादा लेते, 20 मिनट्स पुश करते हैं, एंड देन 1 ग्राम पर आवर के हिसाब से इन्फ्यूजन देते हैं ट्रोकोलिसिस में, ठीक है, और फॉर हाउ लॉन्ग इट इज गिवन, फ्रॉम द व्हेन द कॉन्ट्रैक्शन सबसाइड्स, उसके बाद 24 आवर्स और देना होता है, ठीक है, ट्रोकोलिसिस में सेम ही है, मतलब लोडिंग डोज सेम है, बस जो तुम्हारा मेंटेनेंस है वो इन्फ्यूजन के फॉर्म में देते हैं 1 ग्राम पर आवर में ट्रोकोलिसिस में, ठीक, और न्यूरो प्रोटेक्शन वो सेम ही डोज है, सेम एग्जैक्ट सेम डोज है, ठीक। अच्छा, तुम्हारा नेक्स्ट ड्रग आ रहा है इम्पोर्टेंट, लेबेटलॉल यहाँ पे नहीं है, लेबेटलॉल,
What is the mechanism of action of labetalol? Yes, alpha beta क्या adrenergic okay, alpha beta adrenergic blocker. अच्छा, इसको किस में देते हैं? हाँ हाँ, रिड्यूस द बीपी वो बोलो, प्री-एक्लेम्पसिया क्लेम्पसिया में नहीं है मेन, रिड्यूस द बीपी, ठीक है। एज ए दिस इज द फर्स्ट चॉइस एंटी हाइपरटेंसिव इन प्रेग्नेंट वुमेन और PIH, ठीक। अर्लियर इट वाज Methyldopa, like around 10 years back it was Methyldopa, but now it is Labetalol only, ठीक है। तो डोजिंग क्या होता है? ऑब्वियसली इसका तुम्हारा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओरल एंड IV, ठीक है। ओरल में कैसे देते हैं? 200 या फर्स्ट स्टार्ट करते हैं 100 8 आर्ली, ठीक है, और मैक्सिमम कितना दे सकते हो? 800, ठीक है, दे सकते हैं ओरली मैक्सिमम। और IV का पूरा रेजिमेन है, ठीक है। अगर बीपी तुम्हारा 160/110 से ज़्यादा हुआ तो यू विल स्टार्ट लेबेटलॉल। फर्स्ट दोगे तुम्हारा 20 के बाद देने के बाद यू विल मेजर आफ्टर 10 to 15 मिनट्स। बीपी मेजर किया, नहीं कमा, बढ़ा हुआ है, यू विल गिव 40, ठीक है। फिर बीपी मेजर किया 15 मिनट, नहीं कमा, फिर दोगे 80, फिर दोगे 80, तो मैक्सिमम कितना दोगे? 220 दे सकते हो, ठीक है। और तुम्हारा वायल तो यहाँ पे नहीं मिला, लेबर रूम में नहीं है अवेलेबल, तुमको एक इसके बाद भी अगर नहीं कमा तो व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट? हाँ, 220 के बाद 220 के बाद भी नहीं कमा, और ड्रग्स हैं बता रही हूँ। हाँ, ये रहा लोबेट, ये 4 ml में 20 मिलीग्राम होता है, इसलिए मैंने खींच के रखा है, ठीक है। यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है, OT में है, OT में जाने। लोबेट कंपनी का नाम है, दैट इज जस्ट ब्रांड नेम। 20 मिलीग्राम है 4 ml में, मतलब कि 1 ml में 5 मिलीग्राम, ठीक है। तो 1 ml में 5 mg है, तो नॉर्मली 4 ml का ही मिलता है, तो उसमें 20 मिलीग्राम होता है। तो हम जब फर्स्ट देते हैं 20 देते हैं इसलिए पेशेंट को, वो हमारे पास रेडिली अवेलेबल रहता है, ठीक है। अच्छा, जो अल्फा बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर है, व्हाट इट डज, इस केस में कैसे हेल्प कर रहा है? बीपी रिड्यूस, हाउ इट इज रिड्यूसिंग बीपी? देखो, हाँ, PIH में क्या होता है, मतलब मेनली तुम्हारा एक्लेम्पसिया प्री-एक्लेम्पसिया में क्या हो रहा है? पेरिफेरल रेजिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, बिल्कुल तुम्हारा रेजिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, कंस्ट्रिक्शन हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो उस केस में ये पेरिफेरल वेसुलर कंस्ट्रिक्शन को रिड्यूस करता है, ठीक है, इसलिए बीपी कमाता है, मेन वहाँ पे एक्ट कर रहा है, ठीक। और इसलिए अब फर्स्ट चॉइस हो गया है ये, कि मेन काम मतलब प्रॉब्लम ही ये हो रहा है इसमें, PIH में या तुम्हारा प्री-एक्लेम्पसिया में, एक्लेम्पसिया में। अच्छा, इसका तुम्हारा रेजिमेन हो गया IV एंड ओरल का, इसका साइड इफेक्ट क्या होगा? हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, हेडेक, और कहाँ पे एक्ट करता है? अल्फा बीटा रिसेप्टर्स तुम्हारा ब्रोंकाई में, ब्रोंकोस्पैज्म करता है, ठीक है। इसलिए अगर किसी को COPD है, ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है, कोई पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़, एस्थमा है, वो सब केसेस में नहीं देंगे, ठीक है। कार्डियोजेनिक शॉक है, ऑब्वियसली पेशेंट इज इन हाइपोटेंशन और शॉक, यू विल नॉट गिव। और अगर पेशेंट कार्डिक फेलियर में है तो ऑब्वियसली नहीं दोगे उसमें, ठीक है। ये मैं तुमको बाद में बताऊंगी एग्जैक्टली बाकी सब कॉन्ट्राइंडिकेटेड है टोटली, ये नहीं, ठीक है, वो तुमको बाद में बता दूंगी। गुड क्वेश्चन। मेन जो रीज़न था इसमें शायद यूट्रस पे एक्ट करता है, मैं तुमको एग्जैक्टली बता दूंगी, बाकी यूट्रस पे कोई साइड इफेक्ट होता है इसलिए नहीं देते हैं। तुम्हारा नेक्स्ट आया साइड इफेक्ट हो गया, और कॉन्ट्राइंडिकेशन भी सेम हो गया, जो साइड इफेक्ट हो बोला, कार्डियोजेनिक शॉक, ये सब में नहीं देंगे, ठीक है। और तुम्हारा क्या
COPD हो गया और तुम्हारा हार्ट फेलियर नहीं देंगे। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट ड्रग तुम्हारा एंटी हाइपरटेंसिव है निफेडिपिन। निफेडिपिन कैल्शियम चैनल क्या करते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर? और लेबेटलॉल तुम वो सब तुम भी पढ़ गया ना, अभी फार्मा पढ़ा है ना? हाँ, बाकी ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ गया ना, ठीक है। और क्या क्या देते हैं एंटी हाइपरटेंसिव? नॉर्मली क्या क्या यूज होता है? ठीक है, सबका पढ़ गया ना, ठीक है। तब मैं भी बताऊंगी, तुम भी बोलना, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, निफेडिपिन कैसे क्या कर रहा है एक्शन? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, क्या कर रहा है? कैल्शियम चैनल ब्लॉक हुआ, फिर क्या किया? कैल्शियम चैनल ब्लॉक किया, कहाँ पे एक्ट कर रहा है? हार्ट पे। तो आर्टेरियल डायलेटेशन करता है ना, डायरेक्टली आर्टेरियल डायलेटेशन करता है, हार्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होता, डायरेक्ट आर्टेरियल डायलेटेशन करता है, ठीक है। और स्लो जो चैनल्स होते हैं, कैल्शियम चैनल स्लो वाले, स्लो उनको ब्लॉक करता है, ठीक। वो तुम लोग को ज़्यादा याद होगा, मुझे उतना याद नहीं है। क्या कौन सा टाइप का है? एन टाइप, एल टाइप, स्लो टाइप, एल टाइप। अच्छा, और इसका साइड इफेक्ट क्या है? हाँ, सेम सेम निफेडिपिन का भी हाइपोटेंशन, हेडेक, टैकीकार्डिया और ना रेस्पिरेटरी कुछ नहीं होता इसमें। लोअर रिफ्लेक्स हाँ नहीं, नोजिया वॉमिटिंग होता है इसमें, ज़्यादा होता है पेशेंट को, जब दोगे तो एकदम नोजियस हो जाएगा पेशेंट, हेडेक कंप्लेन करेगा, बिल्कुल सीवियर हेडेक कंप्लेन करता है। अच्छा, इसका डोजिंग क्या हुआ, इसमें कितना मिलीग्राम है? अच्छा, इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? ओरल, हाँ बस ओरल ही है इसका। कितना दे रहे हैं? 10 mg। सब दो बार, सब बीटी करके दे रहे हैं। अच्छा, इसमें TDS होता है, ठीक है, TDS 10 मिलीग्राम TDS और 20 मिलीग्राम TDS। अच्छा, इसका यूजेस क्या क्या हैं? एक तो ऑब्वियसली बीपी, हाइपरटेंशन, और सेकंड यूज क्या है? ऑप्स में ही है। तो मैंने बोला ना, टोकोलिसिस में बहुत सारे ड्रग्स हैं मैक्सिस के अलावा, वन ऑफ ड्रग इज निफेडिपिन। पीएच तो वही सेम, हाई बीपी को कम करने के लिए हुआ। फॉर हाइपरटेंशन इट इज यूज्ड फर्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फॉर हाइपरटेंशन निफेडिपिन देते हैं। सेकेंड इज टोकोलिसिस, ठीक है, टोकोलिसिस में थोड़ा सा हाई डोज देते हैं, 20 to 30 मिलीग्राम देते हैं TDS, ठीक है। और हाइपरटेंशन में थोड़ा सा कम, 10 मिलीग्राम, नॉर्मली 10 मिलीग्राम देते हैं, हम नॉर्मली उससे ज़्यादा नहीं देते क्योंकि वही से पेशेंट कंप्लेन करने लगता है, हेडेक वेडेक सब कंप्लेन स्टार्ट हो जाता है पेशेंट का, तो हम लोग 10 से ज़्यादा नहीं जाते हैं नॉर्मली। अच्छा, और क्या क्या ड्रग्स होते हैं एंटी हाइपरटेंसिव जो हम लोग प्रेगनेंसी में देते हैं? एक मैंने बोला ना, लेबेटलॉल के अलावा एक था पहले यूज होता था, मिथाइलडोपा, अल्फा मिथाइलडोपा, ठीक है। इसका पेरिफेरल सेंट्रल सिम्पैथोमाइमेटिक एक्शन है। इसका डोजिंग होता है नॉर्मली 250 8 आर्ली या 6 आर्ली, ठीक है, 250। उसके बाद 500 भी दे सकते हैं, मतलब 4 times 500 दे सकते हैं। मिथाइलडोपा का साइड इफेक्ट क्या है? बाकी तो वैसे ये हाइपोटेंशन है, लेकिन इसमें ब्रेडिकार्डिया होता है, ठीक है, और नोजिया वोजिया तो होता ही है पेशेंट को। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फीटस में पैलेटिक इलियस की तरह भी हो सकता है, इंटेस्टिनल इलियस बोलते हैं, इस वजह से थोड़ा सा इसका यूज कम है। लेकिन ओवरऑल देखोगे तो देयर इज नो सच मेजर साइड इफेक्ट फॉर मदर और फीटस, इसके दोनों में कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है, तो हम लोग सेफली यूज़ कर सकते हैं। बट कुछ फीटसेस में मिला था वो इंटेस्टिनल इलियस, दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट मतलब अब ज़्यादा फेमस नहीं है उतना जितना पहले था। अब लेबेटलॉल इज द मेन ड्रग, ठीक है। तो तुम्हारा लेबेटलॉल हो गया, निफेडिपिन हो गया, मिथाइलडोपा हो गया। और कोई ड्रग पता है जो प्रेगनेंसी में यूज होता है हाइपरटेंशन के लिए? हाँ, हाइड्रोलाजीन,
ठीक है। हाँ, उसमें भी बहुत सीवियर हाइपरटेंशन होता है, टैकीकार्डिया बहुत ज़्यादा होता है, वो नॉर्मली हम लोग नहीं यूज़ करते हैं, वी डोंट यूज़। अच्छा, और अब क्या बचा तुम्हारा ड्रग यहाँ पे? डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं, क्या यूज़ है? हाँ, ऑब्स में क्या यूज़ है? बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। Yes, very good. Lung maturation के लिए. What we were using this for, Nifedipine and Mexel, we are using them for tocolysis or reducing the labor pains or reducing the contraction. तो why we are reducing the contraction? हम पूरा ऑब्वियसली पूरा 1 मंथ या 2 मंथ्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं कमा सकते, उतना टाइम नहीं दे सकते, ऑब्वियसली कुछ टाइम लिमिट है देने का, ठीक है। तो हम वाई वी आर गिविंग दिस ड्रग टू take some time, like we will get at least 24 to 48 hours contraction कम गया, उस टाइम में we can give डेक्सामेथासोन और बीटामेथासोन for lung maturity. जब lung maturity का इफेक्ट आ गया then we can deliver the patient. Okay, तो delay the delivery we give Nifedipine or Mexel for other drugs for tocolysis. और other drugs क्या हैं tocolysis के, पता है? tocolysis के हाँ, ऑक्सीटोसिन, टोकोलिसिस, अपोजिट बोल दे बिल्कुल। ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर वो है, एंटागोनिस्ट है, कुछ पढ़ा है, फार्मा पढ़ा तो होगा। ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, एटोसिबन सुना है? वो यहाँ पे हम लोग नहीं यूज करते हैं, वी नॉर्मली यूज निफेडिपिन और मेक्सेल्फ। और क्या है यहाँ पे, एक ड्रग रखा हुआ है, ये एसोसुप्रिन, रिटार्ड नाम से भी आता है ये, सुप्रिन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, ड्यूवरडेलिन नाम से आता है। ये स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करता है, रिलैक्सेशन का काम करता है, ठीक है। और क्या है, और कुछ पता है? राइटोड्रीन है, तो तुम्हारा ये है, इसी की तरह राइटोड्रीन है। ये क्या है तुम्हारा? बीटा 2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, ठीक है। बीटा 2 जो रिसेप्टर्स होते हैं उसका डायरेक्टली एगोनिस्ट है, तो ये क्या करता है तुम्हारा? रिलैक्सेशन करता है, डायरेक्टली स्मूथ मसल रिलैक्सेशन करता है। इसका डोजिंग क्या होता है? यहाँ पे कितना है? यहाँ पे तुम्हारा 5 मिलीग्राम है पर ml। एक वाइल है 2 एम्प्यूल का, 2 ml का, सॉरी 2 ml का, तो कितना मिलीग्राम हुआ एक एम्प्यूल में? आइसोक्स 10 मिलीग्राम इन 1 एम्प्यूल और 10 मिलीग्राम इन 2 ml, ठीक है। तो इसमें जब हम लोग IV देते हैं, एक तो इन्फ्यूजन में देते हैं, इन्फ्यूजन में 500 मान लो तुमने NS लिया, तो उसमें 40 to 60 मिलीग्राम ये देते हैं एसोप्रिन, और उसका ड्रॉपलेट होता है 0.3 मिलीग्राम पर मिनट जाता है वैसा, ठीक। और उसके बाद मेंटेनेंस के लिए तुम दोगे वही सेम 20 मिलीग्राम TDS और 8 आर्ली, ठीक है। ये हुआ तुम्हारा IM। और ओरल जो डोज होगा, ओरल भी सेम उतना ही देते हैं, अप्रॉक्स 10 से स्टार्ट करते हैं, 10 मिलीग्राम TDS और 8 आर्ली, और उसको 20 मिलीग्राम TDS और 8 आर्ली कर देते हैं, ठीक है। तो ये हुआ तुम्हारा ओरल। तो स्मूथ मसल रिलैक्सेंट की तरह यूज़ होता है, और ये बहुत इफेक्टिव होता है। हम लोग अर्ली लेवल में यूज़ करते हैं, और इवन वी कैन यूज़ इन सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑल्सो। थर्ड ट्राइमेस्टर तो यूज़ करते हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर में यूज़ करते हैं। अच्छा, और एक और सुना तुम लोग ने, नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन का भी यूज़ है, एक तो तुम्हारा BP कमाने में भी है और टोक्लिसिस में भी, बट वी डोंट यूज़ दैट। अच्छा, बाय डेक्सामेथासोन पे, डेक्सामेथासोन का क्या है मैकेनिज्म एक्शन, क्या करता है? सर्फेक्टेंट, बेबी की लंग्स में सर्फेक्टेंट का ही सिंथेसिस नहीं हुआ होता है, सबसे मेजर
सिंथेसिस बाद में स्टार्ट होता है, तो जब तक मेच्योरिटी और वीक से टर्म दैट इज 37 वीक्स क्रॉस नहीं करता है, इन दैट केसेस फीटस में सर्फेक्टेंट डेफिशिएंट रहता है और सिंथेसिस नॉट प्रॉपर और अप टू द रिक्वायरमेंट. तो इन दैट केसेस वी गिव डेक्सामेथासोन according to RCOG, ACOG different guidelines हैं. Normally 24 plus weeks और 35 weeks, 34 plus 6 बोलते हैं हम लोग तुम्हारा एग्जैक्टली लैंग्वेज में, लेकिन तुम्हारे बोलने के लिए 35 वीक्स, ठीक है. तो 24 प्लस वीक्स और लेस देन 35 वीक्स. मोर देन 24 वीक्स अगर हुआ बेबी एंड लेस देन 35 वीक्स, इस केसेस में वी गिव डेक्सामेथासोन फॉर लंग मैच्योरिटी. What it does, it increases the release of the surfactant from the type 2 pneumocytes, okay, that are present in the lungs, and it induces the enzyme system, all the enzyme system that is synthesizing the surfactant, it induces the enzyme system. Or third thing it also does is ki, if patient or the baby is receiving after delivery any surfactant she or baby is receiving, it increases the effectiveness of that surfactant that is given artificially, okay. और इसका डोज क्या होता है? डेक्सामेथासोन की तो एक और देते हैं, पता है, बीटामेथासोन, बट इट इज नॉट गिवन हियर इन इंडिया नॉर्मली. व्हाई? हाँ, actually proper salt is not available over here, ठीक है. Betamethasone acetate is required for longer half life, but betamethasone phosphate is available. It is available over liver room, but I didn't break it because we don't use it here over here. Why we don't betamethasone phosphate? Because half life is very less. It is equivalent to dexamethasone only, but that is very costly. Betamethasone is very costly and it is much cheaper dexamethasone. Dexamethasone का डोजिंग क्या है? 6 मिलीग्राम. उसमें कितना है? कितना ml है? कितना वो टोटल? कितना वो टोटल? 6 mg देना तो कितना देना पड़ेगा? 2 ml में 4 mg है कि 1 ml? 4 mg and 2 ml. अच्छा, ये कम डोज वाला है. नॉर्मली 8 मिलीग्राम अवेलेबल रहता है. ईच ml कंटेन्स, ना गलत बोल रहा हूँ, ईच ml कंटेन्स 4 मिलीग्राम. तो ये 2 ml है तो ये 8 mg का है, ठीक है. यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा है ईच ml कंटेन्स, ऊपर में छोटा सा, कंटेन्स 4 मिलीग्राम. तो 1 ml में तुम्हारा 4 मिलीग्राम है, ठीक है. तो 2 ml में 8 मिलीग्राम है, तो इसमें 1.5 ml देना होगा अगर तुमको 6 मिलीग्राम देना है. तो इसका डोजिंग इज नॉर्मली 6 मिलीग्राम कितने आर्ली? हाँ, 12 आर्ली. हाउ मेनी डोजेस? टोटल 4 डोजेस, ठीक है, ये देना होता है. और इसका द डेक्सामेथासोन इफेक्ट्स कम्स आफ्टर, proper effect comes after 24 hours, okay. So you have to wait for 24 hours for the effect to come, and meanwhile you can give all the tocolytics if patient is in preterm labor, okay. Betamethasone का डोजिंग क्या है? It is much easier. Betamethasone इसमें 12 मिलीग्राम देते हैं. betamethasone में 12 मिलीग्राम 24 hourly, 2 doses only, ठीक है. It is much better, but it is not the proper compound is salt is not available in India. That's why we prefer dexamethasone, okay. और इसके डिफरेंट गाइडलाइंस ये हैं जो एक मैंने बताया, मोर देन 24 वीक्स, लेस देन 35 वीक्स. और इफ यू हैव गिवन लाइक पेशेंट इज you are giving prophylaxis, like patient is having some pain, patient complaining of pain, and patient had a history of preterm labor in last 2 pregnancy, okay, last 2 deliveries were preterm. So in that cases, you know preterm labor will occur, so you give it prophylaxis, okay. तो prophylaxis में जब देते हैं, when you give it, obviously 24 hours में effect has come, so it affects remains for 7 days only, okay. If delivery occurs after 7 days, then you have to repeat the dose, okay. Total dose should be repeated, okay. Or in any case of doubt, if you are having doubt ki whether you should give it or not, give it, because there is no major side effect of dexamethasone on either mother or baby. अच्छा, diabetes में देना चाहिए कि नहीं?
ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा, तो देना चाहिए कि नहीं डायबिटीज? देना चाहिए। डायबिटीज में बेबी को क्या होता है? डायबिटीज बेबी का मेजर क्या प्रॉब्लम होता है? हाँ, बिग बेबी होता है और लंग्स में कोई दिक्कत नहीं होती। देयर इज नो प्रॉपर सर्फेक्टेंट सिंथेसिस इन डायबिटिक बेबी। ओके, तो सर्फेक्टेंट में प्रॉब्लम होता है, आरडीएस का डिस्कनेक्ट बहुत ज़्यादा होता है इन द डायबिटिक बेबी। दैट्स व्हाई यू विल गिव, but you will have to monitor blood sugar after that. When you have given dexamethasone, first and foremost thing you will ask the patient to monitor the fetal movement properly, because fetal movement decreases after dexamethasone. And second is you will monitor the blood sugar. Okay, frequently monitor the blood sugar. If required, additional insulin should be given, but you will not postpone or not give dexamethasone. You have to give dexamethasone because in diabetic baby it is very important, because surfactant is already less and babies will end up in RDS. अच्छा, और तुम्हारा सब तो ड्रग हो गया, एक क्लास बचा है मिफेप्रिस्टोन। मिफेप्रिस्टोन लास्ट क्लास में नहीं होता। मिफेप्रिस्टोन, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? हैं? मिफेप्रिस्टोन मीज़ोप्रोस्टोल नहीं है, वो हो गया पिछले क्लास में। मिफेप्रिस्टोन, what is the mechanism of action? Antiprogesterone. It is mainly antiprogesterone and anti-glucocorticoid, but in gynae major mechanism of action is from the antiprogesterone effect. What it does, it inhibits the implantation of the fetus, of the embryo, sorry, on the uterine wall. Okay, and if the embryo is already implanted, it will inhibit the growth of the implanted embryo. Okay, and what are the uses of mifepristone? Where it is used? Yes, medical abortion and emergency contraception. अच्छा, medical abortion में क्या डोज रहता है? What is the dose in medical abortion? किट देखा है? किट नहीं देखा, यहाँ तो अवेलेबल है नहीं। Normally it is 200 milligram. Okay, mifepristone we first give 200 milligram of mifepristone in case of medical abortion. Then after 48 hours we give misoprostol. Depending on the gestation age, we give 4 or 2 LRL. Okay, so mifepristone 200 milligram is the dose for medical abortion. What are the other uses I told you? Emergency contraception. What is the dose of emergency contraception? 10 to 50 milligram. Okay, 10 to 50 milligram. Achha, one more important, very important uses of mifepristone in gynae. What is the use? Must have seen in some prescriptions. In gynae, one important use is there. gynae में यूज होता है, सुना है कभी? ये तो ऑप्स में तो हो गया, ऑप्स से अबॉर्शन के लिए यूज हो गया। gynae में यूज सुना है मिफेप्रिस्टोन का? फाइब्रॉइड में सुना है? फाइब्रॉइड में यूज होता है। मैकेनिज्म एक्शन इज सेम, एंटीप्रोजेस्टेरोन एंड एंडोमेट्रियोसिस इट इज यूज्ड। व्हाट इज द डोज इन फाइब्रॉइड? Approx 25 to 50 milligram per day. We give continuous for 3 months or 6 months. Okay. Mifepristone का side effect? अच्छा, इसका route of administration? हाँ, IV? IV कहाँ सुना? Oral, only oral. No IVs there. अच्छा, और मैकेनिज्म एक्शन तो हो गया, और साइड इफेक्ट? ब्लीडिंग, हाँ, नोजिया, वॉमिटिंग, ब्लीडिंग, लो एब्डोमेन पेन, और वे कॉन्ट्राइंडिकेशन इज द सेम। कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यू हैव टू रूल आउट ऑल द थिंग्स। एंड इफ और एक और क्या है इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन? अगर एड्रिनल इनसफिशिएंसी है ऑलरेडी, एंड इफ देयर इज ऑलरेडी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड deficiency is there, so in that case you will not give. Obviously it is anti-glucocorticoid, तो you will not give. और cortisol deficiency है तो उस केस में नहीं दोगे इसको, और bleeding disorder में नहीं दोगे।